پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پھر کچھ دن گزرا کہ عرب میں یعنی جہالت کا دور تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت نہیں کی تھی، جہالت کا دور تھا. وہاں تو جھگڑے فساد آپس میں بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. یعنی کئی جو قبیلے ہوتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں اٹھا لیتے تھے، جنگ ہوا کرتی تھی. اس طرح یہ جنگ ایک جاری جنگ تھی جو پہلے بھی ہوئی، پھر دوسری بار ہوئی، اسی طرح جاری رہی. تو اب بھی یہ ہوا کہ عرب کا ایک عقیدہ تھا، عرب کے لوگوں کا ایک عقیدہ تھا کہ وہ عرب کے لوگ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب میں ان تمام لڑائیوں کو روک دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ مبارک مہینے ہی اور اس میں خون خرابہ نہیں ہونا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی لڑائی، چلتی ہوئی لڑائی بھی روک دیتے تھے، لڑتے نہیں تھے. مگر کبھی کبھی ایسا بھی حال ہو جاتا تھا کہ جنگ ہوتی ہے نا، ایک دشمنی ہوتی ہے، ایک بات میں چھڑ جاتی تھی. کبھی کبھی وہ لوگوں کو تلواریں اس مہینے میں بھی اٹھانا پڑتا تھا. ویسا ہی ایک معاملہ ہوا کہ ایک جگہ میلہ لگا ہوا تھا. وہ میلے میں لوگ دھوم دھام ہوا. میلہ آپ جانتے ہیں نا، میلے میں بہت سارے دھوم ہوتے ہیں، یعنی کمال بتانے والے کمال بتاتے ہیں، سپورٹس وغیرہ کے بھی چیزیں یہ کی جاتی ہیں. میلہ چلتا تھا. تو وہ میلے میں بات بات پر جنگ شروع ہو گئی. مگر تھا وہ مہینہ محرم کا. تو وہ مہینے میں کیا تھا کہ لڑائی کرنا پسند نہیں تھا. تو آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. تو وہ جنگ کا نام ہی جنگ فجار رکھا گیا، یعنی گناہ کی لڑائی. مگر یہ لڑائی بہت تیز ہو گئی. پہلے تو اس لڑائی کو روکنے کے لیے جو بڑے بڑے بزرگ ہوتے تھے خاندان کے، وہ آپس میں بیٹھ کر اس کو ختم کر دیے، وہ پریشانی کو روک دیے. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، شاطر لوگ ہوتے ہیں، ہر خاندان میں ہوتے ہیں بہت سارے شاطر لوگ. وہ لوگوں نے رکی ہوئی معاملے کو، ختم ہو گئے سو معاملے کو پھر سے اشکال کر شروع ہو گئی جنگ. مگر جنگ اتنی بڑی زبردست رہی. اس جنگ میں جو عرب کے لوگ تھے وہ لوگ حق پر تھے. اور جو بنو خیس وغیرہ کے جو دوسری قبیلے والے تھے، وہ قبیلے والے بہت یعنی وہ حق پر نہیں تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی بار اس جنگ میں حصہ لیا. اس جنگ میں آپ کے چچا سب شامل تھے، اور آپ نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا. اور اس جنگ میں آپ کا کام یہ تھا کہ آپ نہ تو کسی کو قتل کرنے کا معاملہ آیا، نہ کسی کا آمنا سامنا ہوا، بلکہ آپ کا کام یہ تھا کہ چچا کو آپ تیر اٹھا کر دیتے رہنا. یہ کام آپ کے سپرد تھا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چچا کو تیر دینے کا کام کیا کرتے تھے. پہلے ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ وہ جو عرب کے یعنی اہل قریش کے جو اگینسٹ تھے، وہ جیتنے غالب ہو گئے تھے. اور پھر تھوڑی دیر گزری کہ اہل قریش غالب ہو گئے، اور اس کے بعد اس کو آخر کار صلح کر
वो जंग ख़त्म किया गया। उस जंग में बड़े बड़े लोग अपने पाँव में जंजीरें बांध लिया थे कि किसी भी हालत से जंग के मैदान से भागना नहीं, बल्कि डटकर करना, लड़ना है, जंग ये होकर रहना, डटकर। इस तरह बड़ी जंग हो गई थी, बहुत बड़ी जंग हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जंग सुलह पर ख़त्म हुई। तो उसके बाद अरब के लोगों ने ये देखा कि हमारे सैकड़ों घराने इस जंग के लपेट में आ गए और ये जंग रुकने वाली नहीं थी, रुकती थी फिर कुछ वजह से शुरू हो जाती थी, इस तरह ये मुसलसल जंग हुआ करती थी। तो उन्होंने देखा कि अब बहुत सारे लोग इस जंग में, कई ख़ानदान वाले ख़त्म हो गए, और पैसा भी लगता है ना जंग में, माल भी ख़त्म हो गया, सुकून भी नहीं रहा, रात में आराम से सोना भी नहीं रहा। इस तरह बदअमनी फैली हुई थी अरब के माहौल में। तो वहाँ के कुछ लोग मिले और मिलकर ये तय करे कि हम हलफुल फुजूल, फिर से हम हलफुल फुजूल करेंगे, यानी एक तहरीक चलाएंगे और उसमें एक कमेटी फॉर्म करेंगे। और क्या करेंगे, 5 चीज़ों का वो लोग उस कमेटी पर रखें। पहला, ये मुल्क से बेअमनी दूर करेंगे, ये लड़ाई झगड़े ये वगैरह नहीं सका, मुल्क से बेअमनी, बदअमनी जो है उसको दूर करेंगे। मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे, जो भी मुसाफिर आते हैं, क्योंकि हरम था, काबा था, काबतुल्लाह के रहने वाले थे, हरम में बाहर से लोग आया करते थे, तो मुसाफिरों की हम हिफाजत करेंगे। फिर तीसरी बात ये थी कि गरीबों की इमदाद करते रहेंगे। यानी एक ट्रस्ट फॉर्म हुआ, एक कमेटी फॉर्म हुई, वो कमेटी में ये तमाम एजेंडा रखा गया, यानी क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स रखा गया कि पहला ये कि जो बेअमनी है इस बेअमनी को दूर करेंगे, लड़ाई वगैरह होने से बचाएंगे, और दूसरी बात मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे, तीसरी बात गरीबों की इमदाद करेंगे, चौथा ये मजलूम की हिमायत करेंगे। जो मजलूम होता है, जो मजबूर होता है, उसकी हम हिमायत करेंगे, उसका साथ देंगे, किसी जालिम या गासिब को मक्के में नहीं रहने देंगे। ये बात कमेटी फॉर्म हुई और इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने ये तमाम तजवीज़ें पेश की, और इसमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी शामिल रहे, और सब ने मिलकर ये हलफ उठाया कि हम इनके ये काम करते रहेंगे। ये नाम इसको हलफुल फुजूल इसलिए दिया गया कि एक तारीखी मुआहिदा पहले भी हो चुका था। बहुत पहले मक्के के कबीले में इस तरह बदअमनी फैल गई थी और कई लोग परेशान हो रहे थे, तो उस वक्त भी इसी तरह एक मुआहिदा किया गया। वो कौन थे? वो मुआहिदा करने वाले कमेटी मेंबर्स जो थे, वो उनका नाम फजल था। क्या था? फजल था। वो फजल बिन हारिस एक का नाम था, एक का नाम फजल बिन विदा था, और एक का नाम फजल बिन फुजूला था। इस तरह कई फजल थे इस कमेटी में, और इसलिए इस कमेटी का नाम ही हलफुल फुजूल रखा गया, यानी फजलों का हलफ। तो इसी को कई ज़माना इसी तरह अमन रहा करता था इस हलफ फजूल की वजह से। उसके बाद फिर ये ख़त्म हो गया, फिर जंगें शुरू हो गई, परेशानी शुरू हो गई, तो फिर ये मुआहिदा किया गया हुजूर के ज़माने में। इसीलिए इसका नाम भी वही रखा गया, हलफुल फजूल।
बात समझ में आई। तो इस तरह जब ये कमेटी फॉर्म हुई तो अरब में कुछ अमन पैदा हो गया। कैसे नहीं होगा, जहां हुजूर है वहां अमन ही तो रहना है ना। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, जहां रहमतुल लिल आलमीन पहुंच गए वह रहमत ही रहमत रहनी चाहिए, है ना। उसके सिवा क्या, रहमत ही रहमत रहनी चाहिए। तो हुजूर थे, रहमत आ गई। वो जंगें जो मुसलसल चला करती थी वो जंगें खत्म हो गई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मुआहिदे में शरीक रहे और आपको ये मुआहिदा इस कदर अजीज था, बहुत पसंद था ये मुआहिदा। रहमत है, रहमत वाले अमन ही को पसंद करेंगे, जंग को कहाँ पसंद करेंगे। तो बड़ा इस मुआहिदे को बहुत पसंद करते थे। और ऐलान नबूवत के बाद आप फरमाया करते थे, इस मुआहिदे से मुझे इतनी खुशी मिली, फरमाते थे कि इस मुआहिदे से मुझे इतनी खुशी मिली, अगर किसी ने मुझे सुर्ख ऊंटें तोहफे में भी दे देता तो मुझे उसे हासिल कर कर भी इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी मुझे इस मुआहिदे से मिली। और फिर ये भी फरमाते थे कि आज भी अगर कोई हलफुल फजूल के नाम से मुझे पुकारे, मैं उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाऊंगा। तो मालूम हुआ सरकार मदीना सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों को खत्म करने नहीं आए, बल्कि इंसानों को इंसानियत सिखाने के लिए आए। ये जो बताया जा रहा है कि इस्लाम तलवार से फैला, इस्लाम ये में जिहाद है, इस्लाम जिहाद को पसंद करता, मुसलमान जिहाद को पसंद करते, वगैरह वगैरह जितने भी बातें सुनते आए ना, हम लोग सुनते रहे हैं, ये तमाम चीजें बेकार साबित हो रही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन को पसंद करने वाले, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको पसंद करने वाले, अमन को पसंद किया करते थे। अमन के मुआहिदे को इतना पसंद किया करते थे कि ऐलान नबूवत के बाद भी ये फरमाते थे कि मुझे उससे बहुत खुशी मिलती थी उस मुआहिदे से। आज भी अगर कहीं बदअमनी हो और उस बदअमनी को ख़त्म करने के लिए यह हलफुल फजूल के नाम से पुकारा गया तो सबसे पहले मैं उनकी मदद करने के लिए चला जाऊंगा। तो मालूम हुआ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, आलमीन के लिए वो रहमत बनकर आए हैं। वो सर खलम करने के लिए नहीं आए, वो सरों को काटने के लिए नहीं आए, बल्कि सरों को बचाने के लिए आए। मौत की तरफ ढकेलने के लिए नहीं आए, बल्कि हयात बांटने के लिए आए। बात समझ में आई। ये था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात। तो आज भी हम इस मामले से यही सीखना है कि बदअमनी को खत्म करना है, अमन फैलाना है। बात समझ में, अमन की तरफ दावत देना है। और हमारा मजहब का नाम ही अमन है, इस्लाम है। बात समझ में, जिसे पीस कहते हैं। हमको जो मजहब मिला, अल्लाह ताला ने जो मजहब नाजिल फरमाया इस दुनिया में, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से लेकर जो मजहब इस दुनिया में आया, उतरा, वो मजहब का नाम ही इस्लाम रहा। वो अमन ही अमन चाहने वाला मजहब रहा। आज भी मुसलमान अमन चाहने वाला ही है। अगर आप तलाश करेंगे मुसलमानों को तो मुसलमानों को कभी बदअमनी फैलाने वाला नहीं पाएंगे। और कुछ लोग हर जगह रहते हैं जिनको जहल घेर लेता है, जाहिल लोग रहते हैं जिनको अक्ल कम हो जाती है, अक्ल की कमी हो जाती है। उस अक्ल की कमी की वजह से वो बदअमनी को हवा देते हैं। मगर हकीकत में अगर तलाश करेंगे
तो मुसलमानों को देखेंगे तो आज भी मैं बड़े इससे कहूंगा कि आज भी मुसलमान जो होता है वो अमन को ही अपना तेवर बनाता है, अमन ही को पसंद करता है। बात समझ में? वो जंग व जिदाल को, कत्ल को पसंद नहीं करता। बात समझ में? तो हम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ अमन का तो मालूम होता है। अमन के माने क्या? सरकार अमन बोले तो पीस, पीस बोले तो राहती। बात समझ में आई? राहती यानी तमिल में क्या बोलते हैं? तमिल वाले कोई हैं? निम्मदी अमाइदी, 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 हाँ अमाइदी। बात समझ में आएगी? अमाइदी। अब वो तेलुगु वाले वो कर लें, यहाँ कर्नाटक वाले भी हैं, वो कर्नाटक में बात कर लें। अमैदी यानी सुकून, अमन। समझ में आया? अमन ईमान से ताल्लुक रखता है, अमन ईमान से ताल्लुक रखता है। ईमान क्या है? अमन ही है। बात समझ में आई? जो ईमान वाला है वो अमन वाला है, उसे अमन ही अमन है। बात समझ में आई? वो झगड़े फसाद यूं ही नहीं करता। हाँ, अगर कोई आके मुझे तमाचा मार दे, क्या मैं तमाचा खा लेके रहूंगा? अब मैं अपने आप को बचाऊंगा? तो बचाने के लिए ही जंगें हुई, जिसे दिफा कहते हैं, डिफेंड कहते हैं। आज भी मुल्क में आर्मी वगैरह रखे हैं। अब वो आर्मी क्यों रखे हैं? अगर जाके उनसे पूछें, हैं, डिफेंस मिनिस्टर से जाके पूछें कि भाई यहाँ डिफेंस क्यों है? इतने चीज़ें यानी कितने मिसाइल वगैरह सब जमाया करते हैं ना, न्यूक्लियर मिसाइल ये सब क्यों जमाते हैं? वो कहेगा कि भाई क्या जंग लड़ने के लिए? वो कहेगा कि नहीं, जंग लड़ने के लिए नहीं। अगर कोई जंग हम पर करे तो हम उसकी दिफा करने के लिए ये तमाम चीजें रखे हैं। बात समझ में? यही हमारे भी यही हकीकत है। हम भी जो भी गज़वात हुए हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, गज़वा बदर, गज़वा उहद, गज़वा हुनैन वगैरह वगैरह की जो भी गज़वात हुए हैं, वो गज़वात अगर हिस्ट्री इंशाल्लाह पढ़ते आ रहे हैं ना, मालूम होगा, तो वो गज़वात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पेश नहीं किया, पहल नहीं की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि दूसरे लोग पेश करे तो उसकी दिफा पर आपने जंग की। समझ में आया क्या? तो इस्लाम जंग की तरफ नहीं ले जाता बल्कि दिफा की तरफ ले जाता है। बात समझ में आई? अब दिफा में जो शहीद होता है, मर जाता है, वो शहादत पा लेता है, और जो बच जाता है उसे तो गाजी बना दिया जाता है। बात समझ में? तो दिफा तो करना ही है। आपके घर में अगर कोई घुस के आके माल उठा लेकर गया, आप तो दिफा तो करेंगे ना, उसका करेंगे ना, दिफा तो करना ही है। अगर नहीं करेंगे तो आप इंसान ही नहीं। इंसानियत में दिफा है, इंसानियत में जंग नहीं है। बात समझ में? इंसानियत में जंग के लिए पहल नहीं है, बल्कि इंसानियत में जंग वो जंग है जो दिफा के लिए है। बात समझ में? तो दिफा के लिए ही जंगें होती थी। बल्कि हम ये कहते हैं कि हम अमन वाले हैं, हम किसी को मारने के लिए नहीं आए, हम समझाने के लिए आए, हम अमन बांटने के लिए आए, हम इंसानियत सिखाने के लिए आए। बात समझ में आई? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक देखेंगे तो आपके अखलाक, आपके किरदार किसी पर जुल्म करने के नहीं हैं, बल्कि जालिमों को ठंडा करते हैं, बल्कि जालिमों के साथ भी ऐसा सलूक करते हैं, दुश्मन के साथ भी ऐसा सलूक करते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन अपनी दुश्मनी भूल कर मोहब्बत करने लगता है, दोस्ती करने लगता है। बात समझ में आई? तो हम मुसलमान भी हकीकत में यही हैं। हम भी किसी के घर में घुसकर किसी को मारने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि हम सबको अमन से रहने की ही दावत देने वाले हैं। वी आर फ्रॉम गॉड। क्या करने के लिए आए हैं? पीस आर्मी है हम। कौन है हम? अमन, अमन के लिए, अमन वाले हैं, अमन बांटने वाले हैं और इंसानियत सिखाने वाले हैं। जिसके कल्ब में ईमान आ गया,
पुरसुकून हो गया, अमन वाला हो गया। अब वो उसके किरदार अमन वाले होते, वो किसी का माल झड़पता नहीं, वो किसी को दगा देता नहीं। मुसलमान का किरदार नहीं कि धोखा, वो ताजिर है तो तिजारत में धोखा नहीं देता, वो अगर नौकर है नौकरी में भी धोखा नहीं देता। बात समझ में आई? मुसलमान का सेवा तो यही है। अब ये कहेंगे कि फुला मुसलमान वो है, भाई वो उसके अपने अपने किरदार हैं, अपने अपने खानदानी परेशानियां हैं। इस्लाम की हकीकत तो ये है, इस्लाम ये दर्ज देता है कि तू किसी को धोखा ना दे। बात समझ में है? तू भी धोखा मत खा, किसी को धोखा भी ना दे। ये दर्स है इस्लाम का। इस्लाम का यही दर्स है कि तू किसी को तकलीफ भी ना दे और तू भी तकलीफ में ना पड़ जा। बात समझ में? इसीलिए हमारे पास देखिए खिलाने पिलाने यानी मदद और इमदाद की बात है, बल्कि मदद करना हमारे लिए एक फर्ज इबादत है। मदद करना फर्ज इबादत है, जिसे ज़कात कहते हैं। ये ज़कात क्या है? गरीबों की मदद करना। जो परेशान बंदे हैं, अल्लाह ताला के उन परेशान बंदों को सुकून देना माल के जरिए से। तब माल खुद कमाया हुआ माल के जरिए से अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे बंदे सुकून पाएं, तो अल्लाह ताला दिए हुए जिस्म से अल्लाह ताला क्या चाहेगा? दूसरे बंदे को सुकून ही। तो जिस्म से भी हम सुकून बांटने वाले और माल से भी हम सुकून बांटने वाले, अमन बांटने वाले, एक दूसरे की मदद करने वाले। इस्लाम मदद और इमदाद का मजहब है। बात समझ में? इस्लाम मदद करने का मजहब है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मुझे इस मुआहदे से इतनी खुशी है कि अगर कोई शख्स मुझे सुर्ख रंग का ऊंट जो है बहुत कीमती होता है, अरब में बहुत कीमती होता है सुर्ख रंग का ऊंट, लाल कलर सुर्ख, समझ में? ये सुर्ख रंग का ऊंट अगर मुझे दे तो भी मुझे इतनी खुशी नहीं मिलेगी मुझे जितनी खुशी हल्फुल फुजूल पर मिली थी। तो मालूम हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन ही को पसंद किया करते थे। कत्ल गारतगिरी को सरकार ने पसंद नहीं किया। बात समझ में आई? अगर हम सच्चे मानों में ईमान वाले हैं, मोमिन हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं, तो हमारे अंदर भी अमन का किरदार पैदा हो, ईमान के साथ अमन दाखिल होता है। बात समझ में आई? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब जबान से निकलता है तो अमन दाखिल होता है, हमारे कल्ब के अंदर सुकून दाखिल होता है। बात समझ में आई? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। यही है हमारा तरीक़ा। आप भी डंके की चोट में कहिए कि हम जंग के लिए नहीं, बल्कि हम कौन है? अमन के लिए। बात समझ में आई? यही हमारे रसूल ने हमको सिखाया। हम जिसके उम्मती हैं, हम जिसके गुलाम हैं, हम जिसकी इत्तबा कर रहे हैं, वो हमको यही सिखाया कि अमन से रहा करो, अमन से पेश किया करो, अमन को फैलाओ, लोगों को सही मानों में इंसान बनाओ, इंसानियत का दर्स दो। बात समझ में? इंसानियत का दर्स दो। इसीलिए हमारे पास हर मामले का, हर चीज का फैसला ऑलरेडी है। शरीयत में हर चीज का फैसला है। हलाल और हराम अगर उठाया जाए कि हलाल में अमन ही अमन है, हराम में बदअमनी ही बदअमनी है। बात समझ में? हलाल में अमन है, हराम में बदअमनी है। शराब हराम है, क्यों हराम है? बदअमनी है। शराब अगर कोई पी लेता है, नशे में आ जाता है, वो धूम करता है, हंगामा करता है, दूसरों को तकलीफ देता है, दूसरों को गाली गलौज करता है।
کیا کیا نہیں کرتا ہے, خود کے گھر میں عربہ مچا دیتا ہے نا. ہاں, تو بدامنی پھیلتی ہے نا, جس کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے مار دھاڑ شروع ہو جاتا ہے. تو ہر حرام چیز بدامنی پھیلانے کی ہے, اور ہر حلال چیز امن کو پیش کرتی ہے. اب جو طریقہ ہمارے اسلام میں ہے وہ طریقہ یہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ میں یہاں آ کے اس لیے رک گیا ہوں, حالانکہ مجھے آگے بڑھنا تھا. یہ بات مجھے بہت پسند ہے, کیونکہ سرکار کو پسند ہے. میں آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں, اور میں یہ جانتا ہوں کہ ہر ایمان والے کو یہ بات پسند ہے. ہر ایمان والے کا شیوا یہی ہے, وہ کبھی کسی کو مار دھوڑ نہیں کرتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان نبوت کیا اور اسلام کو پھیلایا. کہیں آپ نے زور نہیں کیا, زور سے اسلام کو پھیلایا نہیں, کیونکہ زور سے دل نہیں بدلا جا سکتا. جسم کو بدلا دے سکتے ہیں, جسم کے حرکات بدل جا سکتے ہیں, دل نہیں بدلایا جا سکتا. اور مذہب کا تعلق دل سے ہے, قلب سے ہے, جسم سے ہی تھوڑی ہے, قلب سے ہے. انما الاعمال بالنیات, انما الاعمال بالنیات. تمہارے اعمال نیت, تمہارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تمہارے کرتوتوں کا یعنی تمہارے کام کا دار و مدار فیض وہ سب کس پر ہے؟ نیت پر ہے. نیت دل سے تعلق رکھتی ہے. بات سمجھ میں ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, یہ شرائط ہیں ایمان کے. ایمان کے شرائط بھی کیا ہیں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تم جو کہتے ہو, تمہاری زبان سے جو نکلے گا, تمہارا دل بھی اسے ہی ماننا, اسی کو ماننا, اسی کو سچا جاننا. بات سمجھ میں؟ کیونکہ دل ایک ایسی چیز ہے, وہ حق کو حق باطل کو باطل بول دیتا ہے, وہ چاہے کوئی بھی رہے. بس انسان ہے کافی ہے, انسان کو بتا دیتا ہے, انسان علم والا ہے, بس کافی ہے, وہ بتا دیتا ہے کہ یہ جو تو کر رہا ہے وہ غلط ہے, یہ جو تو کر رہا ہے وہ صحیح ہے, اچھا ہے. بات سمجھ میں؟ خلق تو بتا دیتا, خلق تو فیصلہ کر دیتا. ہمارے ہر کام پر قلب فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ کام صحیح ہے, یہ کام غلط ہے, یہ تو نے جو کیا یہ غلط کیا, یہ تو نے جو کیا یہ اچھا کیا. بات سمجھ میں آتی؟ اسی کو ضمیر بھی کہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تمہارا ضمیر تمہارے لیے مفتی ہے, اس کا فتویٰ لیا کرو. بات سمجھ میں آئی؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. تو اس طرح یہ پہلا سفر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس کے بعد یہ جنگ کا معاملہ آیا, اور جنگ کے معاملے میں بھی آپ رہے, اور اس کے بعد حلف الفضول کے ذریعے سے امن عرب میں پھیل گیا.